Good morning, students. I hope you all are safe at your homes, regularly doing maths practice. We have done 19B का part 1 ना, जिसमें मैंने आपको कुछ questions कराए थे. Today I'm going to explain you the word sums of that exercise. So let's start with the video. ये आपके syllabus का last video है, तो kindly carefully watch the video, listen to the things, clear your concepts. Okay, so let me start with the video. Exercise 19B, which was on page number 156. We have done till question number 4, I think. I will again explain you question number 4 and all the other questions as well. So let me just start. So you can see question number 4 is the length of a book is 26 centimeters. Question number 4 में बेटा length is given to you. Length is equals to 26 centimeters and breadth is given to you, which is 20 centimeters. ठीक है, just always keep in mind कि जो यूनिट यहाँ पे लिखी हो वही आप मेंशन करें. What is the area of its front cover? बुक के फ्रंट कवर का एरिया क्या होगा? तो एरिया इज इक्वल्स टू, ऑब्वियसली द फ्रंट कवर ऑफ बुक लुक लाइक्स योर रेक्टेंगल. यू कैन सी, आई कैन क्लोज माई बुक एंड you can see this look likes your rectangle. So the area of this front cover will be area of rectangle, and we all know what is area of rectangle. Length multiplied by breadth. Length is 26 here and breadth is 20. Now we will multiply the same in our rough portion. rough part में उसको multiply करते हैं. So 26 को 2 से multiply करो आप. 2 6 या 12 का 2, 1 carry, 2 2 4 1 5. And just because you have to multiply it with 0, so just write 1 0 at the end. This is the simplest तरीका to identify या to calculate the area. So 520 square centimeter will be your answer because you are finding area. ठीक है, फिर से चेक कर लो आपका आंसर ठीक है क्या. 2 6 या 12 का 2, 1 carry, 2 2 4 और 1 5. So 520 is your answer. Now let's come to our question number 5. Each side of a square piece of cardboard is 40 centimeters. आपको एक स्क्वायर कार्डबोर्ड गिवन है, ठीक है, और हर एक जो साइड है उस कार्डबोर्ड की वो 40 सेंटीमीटर्स गिवन है. ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड? तो आपको एरिया निकालना है कार्डबोर्ड का. ऑब्वियसली कार्डबोर्ड इज ऑफ स्क्वायर शेप, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. Right, side is 40 here and other side will also be 40. 4 4s are 16, along with it 2 zeros are there, so 1600 square centimeter will be the area of cardboard. फिर आपको पूछा है how many square pieces of side 2 centimeters. आपको स्क्वायर पीसेस कट करने हैं इसके अंदर से, जिसकी जो साइड है 2 सेंटीमीटर्स है, कैन बी कट आउट ऑफ दिस. उसके लिए आपको पहले इस स्क्वायर पीस का एरिया निकालना पड़ेगा. एरिया ऑफ 1 square piece. Obviously this piece is also in the form of square, so the area will be side into side, and side is 2 centimeters, so 2 into 2 is 4 square centimeters. मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बताई है कि जब आपको नंबर्स निकालने हैं, आपको हाउ मेनी स्क्वायर पीसेस निकालने हैं, तो फॉर दैट व्हाट यू विल डू, नंबर ऑफ पीसेस विल बी इक्वल्स टू total area, which is area of cardboard, divided by area of one piece. वन पीस के एरिया से डिवाइड करो. टोटल एरिया कितना गिवन था आपको? 1600 एंड एरिया ऑफ वन पीस इज 4. ओके, सो 4 4s are 16 along with 2 zeros are there, so number of pieces will be 400 in this case. ठीक है, 400 square pieces can be cut out of this square cardboard. Is this clear? Now next question, question number 6. Mangboi owns a rectangular piece of land that is 100 meter in length and 50 meter in breadth. This is the figure. ये पूरा लैंड है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड जिसकी लेंथ 100 है और ब्रेथ 50 है. तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में आपको एरिया फाइंड आउट करना है प्लॉट का. तो फर्स्ट पार्ट में आपको लेंथ दी है 100 मीटर्स और ब्रेथ आपको गिवन है 50 मीटर्स. आपको एरिया निकालना है ऑफ रेक्टेंगुलर पीस. ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट आप कह सकते हो. ठीक, हमेशा ध्यान रखना A स्टैंड्स फॉर एरिया, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ. आई एम नॉट राइटिंग इट होल. ठीक, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. लेंथ इज 100, ब्रेथ इज 50, सो
5 1 सा 5, कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़, ठीक। सो 5000 स्क्वायर सेंटीमीटर्स है मीटर्स है, ध्यान से देख लेते हैं, इट्स मीटर्स, तो वी विल नॉट राइट सेंटीमीटर्स, इट्स स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, अगर आप यहाँ सेंटीमीटर्स लिखते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो दिस ए पार्ट इज डन, नाउ वी हैव टू डू बी पार्ट। बी पार्ट में क्या गिवन है, ही डिसाइड्स टू डिवाइड हिज लैंड इनटू 3 प्लॉट्स एज शोन। इस तरह से उसने 3 प्लॉट्स में अपने लैंड को डिवाइड किया और आपको उन तीनों प्लॉट्स का एरिया निकालना है। तो उसके लिए लेट मी जस्ट ड्रॉ द फिगर, मैं आप लोगों के लिए एक ये फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। आई जस्ट मेड इट, ठीक। आपको यहाँ पे जो लेंथ गिवन है वो 100 मीटर्स गिवन है क्वेश्चन में, एंड द ब्रेथ इज 50 मीटर्स, ठीक। दिस इज 50 मीटर्स अगेन गिवन इन द क्वेश्चन, यू कैन सी क्वेश्चन में गिवन है, एंड दिस पार्ट इज 20 मीटर्स आपको गिवन है। अब बेटा एक बात बताओ, अगर आपको तीनों प्लॉट्स का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट प्लॉट का लेंथ ब्रेथ आपको पता चल गया, सो एरिया ऑफ प्लॉट 1 विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है, 100, लेंथ हमेशा लॉन्गर साइड होती है, ब्रेथ हमेशा शॉर्टर साइड होती है, ब्रेथ इज 20, सो 2000 स्क्वायर मीटर विल बी द एरिया ऑफ प्लॉट 1। देन यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ प्लॉट 2, ठीक है। सेकेंड प्लॉट का एरिया भी लेंथ इनटू ब्रेथ ही होगा क्योंकि वो भी रेक्टेंगल है। अब सेकेंड प्लॉट में आपको सिर्फ 50 पता है, आपको उसका ब्रेथ नहीं पता। आप ये देखो, अगर ये पूरा साइड 50 है, क्योंकि ब्रेथ है ना पूरे रेक्टेंगुलर पीस का, ये आपको 20 गिवन है, तो दिस पोर्शन मस्ट बी 30 मीटर्स, ये 30 मीटर्स होगा, राइट। अब ये 30 मीटर्स है, इसके सामने दिस वन विल ऑल्सो बी 30 मीटर्स, ठीक है ना। ओके, सो यू गॉट हियर प्लॉट सेकेंड के अंदर आपकी लेंथ होगी 50 विच इज़ ग्रेटर साइड एंड शॉर्टर साइड इज 30, सो 50 इंटू 30, 5 3s are 15, along with this 2 zeros are there, so 1500 square meter will be the area. Now we have to find out the area of plot 3. Again this is also rectangular shape, तो length into breadth। देखो ये पूरा जो साइड है वो 100 मीटर्स है, ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल होती है, इतना पोर्शन आपको 50 गिवन है, तो दिस पोर्शन विल बी 50, so length is 50 in third part also and breadth is 30, so this will be 1500 same, so this will be the area of third portion। तो आपने प्लॉट 1 का एरिया फाइंड आउट किया, प्लॉट 2 का किया और प्लॉट 3 का भी किया, यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 7, Areen spreads a carpet of length 3 meter and breadth 2 meter in her room. If the length of room is 4 meter and breadth is 3 meter, what area is carpeted? तो भाई पहले हम बनाएंगे फिगर। हमने बनाया एक रूम, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का है, ये हमें दिया है क्वेश्चन में। इसके अंदर आपको एक कारपेट स्प्रेड करना है, वो भी रेक्टेंगुलर शेप का है। जो लेंथ है, जो रूम का लेंथ है वो 4 मीटर्स है, ठीक है, और जो ब्रेड्थ है रूम की वो 3 मीटर्स है। रूम के अंदर जो आप कारपेट बिछाने वाले हो, कारपेट का लेंथ 3 मीटर्स है और कारपेट का जो ब्रेड्थ है वो 2 मीटर्स है, ठीक। आपको अनकारपेटेड पोर्शन निकालना है, तो आप क्या करोगे, पहले आप एरिया फाइंड आउट करोगे ऑफ रूम। एरिया ऑफ रूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ऑब्वियसली लेंथ इज 4 meters, breadth is 3, 4 3s are 12, so 12 square meters will be the area of room. Then you will find out the area of carpet. कारपेट भी जो है वो आपका रेक्टेंगुलर शेप का है, so area of carpet is also length into breadth, length is 3 and breadth is 2, 3 2s are 6 square meters. Now you have to find out the area of uncarpeted portion, ठीक है। अनकारपेटेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करोगे तो पूरे रूम के अंदर से अगर आप कारपेट जहाँ बिछा है उस एरिया को माइनस कर दो तो आपको अनकारपेटेड पोर्शन मिल जाएगा। 12 - 6 अनकारपेटेड मतलब बेटा जो स्पेस लेफ्ट आउट है कारपेट को बिछाने के बाद रूम के अंदर, तो 12 - 6 आपने किया, एरिया ऑफ रूम में से आपने एरिया ऑफ कारपेट को सब्ट्रैक्ट किया, यू विल गेट स्क्वायर मीटर्स, 6 स्क्वायर मीटर्स विल बी योर अनकारपेटेड पोर्शन। Is this clear? So this is the only question which you have to do. Now let's come to question number 8, which is the area of a room is 15 square meters already given, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है, आई एम राइटिंग एरिया ऑफ रूम इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर मीटर। हाउ मेनी टाइल्स ऑफ लेंथ विल बी नीडेड टू कवर द फ्लोर। अब हाउ मेनी, नंबर ऑफ टाइल्स पूछा है, तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था एक जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ चीज़ें निकालनी थी, हमने ये किया था एरिया
ये वाला स्क्वायर पीस वाला फिफ्थ वाला बिल्कुल वैसे ही ये होगा। तो इसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एरिया ऑफ टाइल्स। तो ठीक है, आपको जो टाइल्स हैं उसकी हम देख लेते हैं लेंथ ब्रेड्थ क्या गिवन है। ठीक है, चलो आते हैं। एरिया ऑफ रूम ऑलरेडी गिवन है 15 स्क्वायर मीटर्स, टाइल्स की लेंथ है 30 सेंटीमीटर्स और टाइल्स की जो ब्रेड्थ है वो है 20 सेंटीमीटर्स। सो एरिया ऑफ वन टाइल will be length into breadth which is 30 into 20, 3 2s are 6 and 2 0 square centimeters। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि ये सेंटीमीटर्स में है और यहाँ एरिया मीटर्स में है। आपको क्वेश्चन में दिया है कि एक स्क्वायर मीटर के अंदर 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर होते हैं। तो आप इस स्क्वायर सेंटीमीटर को भी, इस स्क्वायर मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। 15 स्क्वायर मीटर के अंदर कितने होंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 10,000 विच विल गिव यू 1,50,000 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो आपने इसको भी सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको निकालना है कि कितने टाइल्स आप उस रूम के अंदर उस रूम के अंदर आपको उस रूम के अंदर ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप फ्लोर को कवर कर सको। सो नंबर ऑफ टाइल्स विल बी टोटल एरिया विच इज़ एरिया ऑफ रूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। अब दोनों ही सेंटीमीटर्स में, तो वी कैन टेक द वैल्यूज़। सेंटीमीटर वैल्यू लेना है बेटा, ध्यान रखना, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 600। 2 0 से 2 0 कैंसिल की, आपको कितना मिला 1500 बाय 6। ठीक है, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, आप इसको सेपरेटली भी सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक, 6 2 12 होता है, माइनस किया 3, नोट द नेक्स्ट डिजिट 0, 6 5 30, माइनस किया 0, नेक्स्ट डिजिट आया 0। जब नेक्स्ट डिजिट 0 है तो वो 0 से ही जाएगा, तो आपको कितना मिला 250। तो हाउ मेनी टाइल्स आर देयर, 250 टाइल्स आर देयर, या यू विल नीड 250 टाइल्स टू कवर द रूम। इसके बाद है आपका बी पार्ट। बी पार्ट में आपको गिवन है इफ़ द प्राइस ऑफ टाइल इज़ ₹250 फॉर 10, यानी जो आपको कॉस्ट दी है वो दी है 10 टाइल्स की। 10 टाइल्स की कॉस्ट इज़ ₹250। तो आप पहले क्या निकालोगे, कॉस्ट ऑफ वन टाइल, एक टाइल का कॉस्ट निकालोगे। ज़्यादा का दिया है, कम का फाइंड आउट करना है, तो यू हैव टू डिवाइड द नंबर्स। डिवाइड किया तो आपको वन टाइल की कॉस्ट मिली ₹25। लेकिन आपके पास कितनी टाइल्स हैं टोटल, 250। तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 250 टाइल्स। ठीक है, देखो वन टाइल का जो कॉस्ट अभी आपने आइडेंटिफाई किया वो था ₹25। तो जब आप ज़्यादा का फाइंड आउट करोगे तो आपको 25 को 250 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं। 5 0 0, 5 5 25 का 5 कैरी हुआ 2, 5 2 10 और 2 12, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 2 0 0, 2 5 10 0, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी कैलकुलेशंस को चेक करो, आप चाहो तो इसको सेपरेटली चेक कर सकते हो, सेपरेटली कैलकुलेट करो और फिर वीडियो ऑन करके देखो कि क्या आपको सच में यही कैलकुलेशंस मिल रही है। ठीक है, so your answer will be ₹6,250. So these were the questions of your unit 19. These are done now. आपने टोटल कॉस्ट भी फाइंड आउट कर ली ऑफ द टाइल्स एंड दिस इज ऑल फॉर द डे। 19B एक्सरसाइज इज ओवर एंड आपका PT4 सिलेबस इज ऑल्सो ओवर। ठीक, सो एनी डाउट्स you all have you can ask. Okay, keep on watching the videos properly, carefully. It can happen that in future also I will share some videos with you, not in your groups but on the channel only. तो kindly इसको सब्सक्राइब करोगे ना तो आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, so take care everybody and have a great day. Goodbye students.